مرنے کے بعد انسان کی قبر میں پہلی صبح اور پہلی شام کیسی ہوتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو قبر کی پہلی صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہان نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض وقت سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر بھی ہوتی ہے اور کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی بڑی شدت ہوتی ہے۔ نزع اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اثر کرتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ نزع کی تکلیف نفس و روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر جوڑ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے پیروں تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا موت تلوار کی مار آرے کے چیرنے اور کینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہوتا ہے، تو جب صرف روح کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخو پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اوسان خطا کر دیتی ہے اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کی حلق اور سینے سے غرغرہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا، اور جو اس کی اصل فطرت ہے۔ اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ جاتی ہے اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ ذرا غور کرو کہ ایک رگ کھینچنے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت آ پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے۔ اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ موت کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ ایک طویل روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں، جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں، اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی طرف مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت اور آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے، بس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں، اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور اسے ساتھ لے کر اس کو جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر
जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू मुश्क पाई गई वैसी वो खुशबू होती है। फिर फरमाया कि इस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात में भी इनका गुजर होता है वो कहते हैं वाह क्या अच्छी खुशबू है। ये फरिश्ते मैयत का नाम ताजीम और तकरीम से लेकर इसका तारुफ करवाते हैं, यहाँ तक के पहले आसमान पर पहुँच जाते हैं और आसमान का दरवाजा खुलवाते हैं। चनाचा दरवाजा खोल दिया जाता है और वो इस तरह रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं, हत्ता के 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते इसे दूसरे आसमान तक रुखसत करते हैं और जब 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं तो अल्लाह का हुक्म होता है कि मेरे बंदे का नाम इलीयीन में लिख दो और अब जमीन पर ही इसे लौटा रहा हूँ और जमीन ही से क़यामत के दिन दोबारा जिंदा करूंगा। इसके बाद ये रूह जमीन पर वापस आ जाती है और मैयत के जिस्म में दाखिल कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते कब्र में इसको बिठाकर सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। वो इनके सही सही जवाबात दे देता है तो फरिश्ते कहते हैं बेशक तू सच कहता है। इसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से निदा आती है, मेरे बंदे के लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, इसको जन्नत का लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत का दरवाजा खुलते ही रूह पर हवा और खुशबू आने लगती है और कब्र को हद्दे नजर कुशादा कर दो। जिसके बाद मैयत के नेक अमाल एक हसीन और खूबसूरत शख्स की शक्ल में आते हैं और मैयत से इसकी रफाकत का वादा करते हैं और खुशी की बिशारत देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इसी रिवायत में ये भी है कि काफिर की मौत के वक्त स्याह चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से आकर इसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और इसको तहद्दे निगाह दिखाई देते हैं। इसके बाद मुल्कुल मौत मैयत के सरहाने बैठकर कहते हैं, ए खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी और गजब की तरफ निकल के चल। ये सुनते ही रूह खौफो हरास से सारे बदन में दौड़ने लगती है, मगर तरह तरह की सख्ती से इसकी रूह जबरदस्ती जिस्म से निकाल दी जाती है और वो फरिश्ते इसकी रूह को टाट में लपेट लेते हैं और उस वक्त उस रूह में मुर्दार यानी सड़े हुए जानवर की बदबू फूटने लगती है। फरिश्ते इसको लेकर आसमान की तरफ परवाज करते हैं और वो दरवाजा खुलवाना चाहते हैं मगर आसमान का दरवाजा नहीं खुलता। हुक्म होता है कि इसका नाम सिज्जीन में लिख दो। इसके बाद ये रूह जमीन पर फेंक दी जाती है और जिसमें दाखिल करके फरिश्ते सवाल करते हैं तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है मुझे मालूम नहीं। फिर पूछते हैं तेरा दीन क्या है। वो लाइमी का इजहार करता है। फिर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक सवाल करते हैं। वो यही जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। उस वक्त खुदा की तरफ से निदा आती है, मेरे बंदे ने जो कुछ कहा बिल्कुल झूठ कहा, इसके नीचे आग का बिस्तर बिछा दो और दोज़ख का एक दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुलते ही दोज़ख की गर्मी और आग के शोले लपकने शुरू हो जाते हैं। फिर इसको कब्र इस जोर से दबोचती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की पसलियां इधर हो जाती हैं। फिर इसके अमाल एक ऐसी बदशक्ल सूरत में आते हैं कि इसके जिस्म से बदबू आती है और इसको अजाब और मुसीबत की खबर सुनाते हैं। हुजूर पुरनूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र इससे कहती है, ए बदबख्त, खराब हाल इंसान, तू मुगालते और धोखे में रहा, मुझ पर शान से अकड़ कर और तन कर चलता था। तो इसको ये मालूम नहीं था कि मैं इम्तिहान और आजमाइश का घर हूँ। मैं तन्हाई और हैबत और जुल्मत का मकाम हूँ, जहाँ सिर्फ कीड़ों की बहुतात है। तूने मेरी परवाह न की। बस अगर मरने वाला नेक होता है तो इसकी तरफ से कोई जवाब देने वाला कहता है, ए कब्र, तू देखती नहीं कि ये अच्छी बातों का हुक्म करता था और लोगों को बुरी बातों से रोकता था। फिर कब्र ये सुनकर कहती है, अच्छा ये अगर ऐसा था तो इसके लिए मैं गुलजार बन जाती हूँ। बस इसका जिस्म नूर का बन जाएगा और रूह खुदा के पास चली जाएगी। और कभी मुर्दे से कब्र इस तरह कहती है कि मैं तारीकी और तन्हाई का घर हूँ। अगर तू दुनिया में अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी में रहा तो मैं आज तेरे लिए रहमत होंगी, और अगर तूने हक ताला की नाफरमानी और सरकशी की होगी तो मैं तेरे लिए अजाब बन जाऊंगी। मैं वो हूँ जो मुझ में खुदा का मती होकर आएगा, वो यहाँ से खुश खुरम होकर निकलेगा, और जो गुनहगार और नाफरमान होगा वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और बाज दफा कब्र कहती है कि ए खाना खराब, क्या तुझे किसी ने मुझसे नहीं डराया था और तुझे ये खौफ नहीं दिलाया था कि तंग और तारीक और बदबूदार और खौफनाक कीड़ों का मरकज हूँ। बस तूने दुनिया में रहकर मेरे लिए क्या सामान मुहैया किया। और जब कोई शख्स कब्र में दफनाया जाता है और इस पर अजाब और तकलीफ पर नुज़ूल होता है तो इसके आसपास के मुर्दे जो मदफून होते हैं इससे कहते हैं, ए शेख, तू किस कदर गाफिल रहा कि हमारे बाद भी तुझे दुनिया में रहने का मौका मिला और तू हमसे बाद में आया, फिर भी तूने अपने से पहले आने वालों की मराजियत से इबरत हासिल न की और तूने ना समझा कि मरने वाले तो मर चुके और इनके अमाल भी पूरे हो गए। खूब अच्छे अमाल थे या बुरे, मगर तेरे लिए तो बेहतरीन वाक़े थे। तू दारुल अमाद यानी दुनिया में था और बुरे अमाल और बुरे अफ़आल के तदारुक नेक कामों से कर लेता। तुझे तो काफी मोहलत मिली हुई थी। तू उन लोगों पर गौर करता जो कि तुझसे पहले लोगों के कंधों पर लाद कर मट्टी में मिला दिए गए। तुझे किसने धोखा दिया और तू किस मुखालते और फरेब
में पड़ा रहा। हदीस शरीफ में वारिद है कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र जहन्नुम के खंदकों में से एक खंदक है या जन्नत के बागों में से एक बाग है, और जब कोई शख्स मर जाता है तो उसको उसका ठिकाना सुबह शाम दिखाया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाई जाती है और दोज़खी को दोज़ख का नजारा कराया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि ए उमर, तुम अपने मरने को कैसा देखते हो कि लोग तुम्हारे लिए 4 गज लंबी और 1.25 गज चौड़ी कब्र खोदें, फिर तुम्हें गुस्ल देकर कफनाएं और तुम्हें ले जाकर कब्र में रख कर चले आएं, और फिर मुनकिर नकीर बिजली की तरह आंखें चमकाते और बादल की तरह गरजते जमीन पर बाल लटकाते और अपने लंबे लंबे दांतों से कब्र की मिट्टी हटाते हुए आएं और वो आकर तुम्हें झंझोड़ दें। हज़रत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मेरी अकल मेरे साथ होगी? आपने फरमाया, हाँ, अकल तुम्हारे साथ होगी। अर्ज किया, तो मुझे कोई खौफ नहीं, मैं जवाब दे दूंगा। रिवायत है कि कब्र में सवालो जवाब सिर्फ उम्मत मोहम्मदी की खुसूसियत है। अंबिया साबिकीन की उम्मत पर खुदा ताला की नाफरमानी से अजाब नाजिल हो जाता था, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद वो अजाब मौकूफ कर दिया गया और इसकी जगह बजरिया मुनकर नकीर सवाल जवाब का सिलसिला जारी किया गया, और जो शख्स मरने के बाद दफन नहीं किया जाता उससे भी सवाल जवाब किया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, मौत दरअसल बंदा मोमिन का तोहफा है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन का तोहफा मौत है और उसके लिए एक खुशबूदार फूल है। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने अबू हज़म रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि ये बताइए कि हम मौत से क्यों घबराते हैं? उन्होंने फरमाया, इसलिए घबराते हो कि तुमने आखिरत को बर्बाद कर दिया और दुनिया को आबाद किया, लिहाजा आबादी से वीराने में जाना पसंद नहीं करते। सुलेमान ने कहा, आप सच फरमाते हैं। जिस शख्स को कब्र की जिंदगी पर यकीन हो और अपने नेक अमाल के बदले वहाँ अच्छे हाल में रहने की उम्मीद हो और ये समझता हो कि इस आलम से दोस्त अहबाब को छोड़कर चला जाऊंगा तो बरज़ख में रिश्तेदार और जान पहचान वाले मिल जाएंगे, तो फिर मौत से क्यों घबराए और इस जिंदगी को बरज़ख की जिंदगी पर क्यों तरजीह दे? हदीस में है, 2 चीजों को इंसान मकरूह जानता है, एक तो मौत है, हालांकि मौत इसके वास्ते फितने से बेहतर है, दूसरे मुफलिसी को, हालांकि मुफलिसी हिसाब देने के लिए आसान है। उलमाए किराम ने फरमाया कि जो शख्स मौत को याद करेगा उसको अल्लाह ताला 3 करामात देगा। पहली जल्द तौबा, दूसरी दिल की पनाह और तीसरी इबादत में दिल जमई और इत्मीनान, और जो मौत को भूल जाएगा उस पर 3 बलाएं नाजिल होंगी। पहली तौबा की इसको तौफीक ना होगी, दूसरी थोड़ी चीज इसको पनाह ना करेगी और तीसरी इबादत में सुस्ती करेगा। किसी शख्स ने हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन मोमिन सबसे ज्यादा अक्लमंद है? फरमाया, जो मौत को सबसे ज्यादा याद करे और नेक अमल से मौत के बाद का सामान दुरुस्त करे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि सब लोग सो रहे हैं, जब मरेंगे तब आँख खुलेगी। ए मुसलमानों, मौत और आलमे बरज़ख की हकीकत तुम पर वाज़िह हो चुकी। अब तुम खुद ब खुद सोचो कि जो जिंदगी तुमने गुजार चुकी है इसमें आखिरत के लिए क्या क्या सामान मुहैया कर रखा है। तुमने दुनिया को आबाद किया और आखिरत को बर्बाद किया। यहाँ किसी के बारे में ये फैसला करना गैर मुमकिन है कि वो गुनाहगार है या नेक हो सकता है कि हमारी नजर में सिर्फ इसकी बुराइयां और बदअफ़ालियां हों, लेकिन नेकियां भी मौजूद हों जो इसकी बुराइयों को धोने वाली हों और हमसे पोशीदा हों। इसलिए हर शख्स को अपने अयूब और गुनाहों पर और खताओं पर नजर रखनी चाहिए, अपनी इस्लाह की फिक्र कोशिश करनी चाहिए। इसलिए तुम एक दूसरे की ऐब जोई और बुराई बयान करने से परहेज करो, अपनी जिंदगी को संवारने की जद्दोजहद करो ताकि आखिरत के लिए बेहतरीन सामान दुरुस्त कर सको और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सको। शराब नोशी, जिना, चोरी, जुआ, झूठ, गिबत, चुगलखोरी, ऐब, जुल्म, माँ बाप की नाफरमानी और इस किस्म के बहुत से गुनाहों के बारे में तुम पढ़ चुके हो। कब्र में इस कदर सख्त अज़ाब इन्हीं गुनाहों के बदले में मिलता है। तमाम गुनाहों से इज्तनाब करो और नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, सदका, सिला रहमी, इत्तफाक व मोहब्बत, ऐसे तमाम नेक कामों पर खुलूसे दिल से अमल करो। यही तुम्हारे अमाले साले आखिरत में काम आएंगे और तुमको अजाब से महफूज रखेंगे। मोहतरम नाज़रीन, मैयत के अमाल के बारे में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्दे को कब्र में रख देते हैं तो वो लोग जो इसके जनाजे में आए थे दफन करने के बाद वापिस होते हैं तो वो इनके पाँव की आहट सुनता है और इसके अमाल इसे घेर लेते हैं। अल्लाह ताला इसके अमाल को शक्लो सूरत और जुबान अता करता है। बस ये मुर्दे से कहते हैं कि ए तन्हाई के इस गड्ढे में पड़े इंसान, आज तू हमारे पास है और अब यहाँ तेरा कोई नहीं है। तेरे अजीज और रिश्तेदार सब तुझ से बिछड़ गए। बंदा जब नेक होता है तो उसके नेक अमाल, रोजा, हज, ज़कात वगैरह इसे घेर लेते हैं। फिर अजाब के फरिश्ते इसकी पाँव की तरफ आते हैं तो नमाज कहती है इससे अलग रहो,
ये शख्स अल्लाह की इबादत के लिए इन पाँवों पर खड़ा रहता था। फिर फरिश्ते इसके मुंह की तरफ से आते हैं तो रोजा कहता है कि इधर तुम्हारे लिए रास्ता ममनू है कि ये शख्स अल्लाह के लिए दुनिया में भूखा प्यासा रहता था। फिर फरिश्ते बदन की तरफ आते हैं तो हज और जहाद कहते हैं यहाँ से दूर रहो, क्योंकि इस शख्स ने बदन से हज के लिए बड़ी मेहनत और मुशक्कत उठाई और खुदा की राह में जहाद किया, यहाँ तुम्हारे लिए रास्ता नहीं। फिर ये हाथों की तरफ आते हैं तो सदका और ज़कात कहता है कि इसको रहने दो, इसने अपने हाथों से बहुत सा सदका दिया और बारगाही इलाही में मकबूल भी हुआ, तुमको यहाँ राह न मिलेगी। तब वो मुर्दे से कहते हैं मुबारकबाद, तू पाक ही जिंदा रहा और पाक ही मरा। फिर ये अजाब के फरिश्ते चले जाते हैं और रहमत के फरिश्ते इस कब्र को हद्दे निगाह तक कुशादा कर देते हैं और वहशत कंदील रोशन कर दी जाती है और वो कयामत तक इसी आसाइश में रहता है। मोहतरम नाज़रीन, कब्र के दबोचने का बयान भी सुन लीजिए। कब्र में कभी किसी गुनाह के बाइस या किसी नेमत का शुक्रिया न करने की वजह से कुछ देर के लिए नेक बंदों के लिए तंगी हो जाती है, मगर ये महज जरा सी देर के लिए होता है। इसके बाद फौरन कब्र कुशादा हो जाती है और नेक बंदों पर इसलिए भी होती है कि बशरियत के तकाजे के तहत अगर कोई मामूली सा गुनाह भी हो गया हो तो इस मामूली सी तंगी की वजह से दूर कर दिया जाता है और वो गुनाह कब्र ही में माफ हो जाता है। कब्र के दबोचने के बचाव के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मर्जुल मौत में सूरह इखलास का विर्द रखेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा और क़यामत के दिन फरिश्ते इसे हाथों हाथ लेकर पुल सिरात से पार करके जन्नत में ले जाएंगे। एक और रिवायत है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन माज की जनाजे पर तशरीफ ले गए। जब इन्हें नमाज जनाजा के बाद सुपुर्दे खाक किया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत देर तक तस्बीह हम्दो सना पढ़ी। आपसे किसी ने इसका सबब दरियाफ्त किया तो फरमाया कि इस नेक बंदे पर कब्र की तंगी हो रही थी लेकिन अल्लाह ने दूर कर दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद की निस्बत फरमाया था कि इनकी मौत से अर्श भी हरकत में आ गया और इनके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए गए और 70,000 मलाइका ने इनके जनाजे में शिरकत फरमाई। इसके बावजूद इनको थोड़ी सी कब्र की तंगी पेश आई। बस इस मकबूल बारगाह बंदे को भी थोड़ी सी तंगी हुई तो दूसरों का क्या तज़किरा। मोहतरम नाज़रीन, हदीस में वारिद है कि जब मैयत को कब्र में दाखिल कर दिया जाता है तो उसको ऐसा मालूम होता है जैसे सूरज छुप रहा हो, यानी करीब वक्ते शाम। बस इसके जिस्म में रूह डाल दी जाती है तो वो आंख मलता हुआ उठकर बैठ जाता है और फरिश्तों से कहता है मुझे छोड़ दो, मैं नमाज पढ़ूंगा। और ये इसलिए कि वो अपने आप को दुनिया में समझता है और वो इसी ख्याल से कहता है कि सवालो जवाब रहने दो, नमाज का वक्त हो रहा है, मुझे नमाज पढ़ने दो। लेकिन ये बात वही शख्स कहेगा जो दुनिया में नमाज का पाबंद होगा, उसको हर वक्त नमाज का ध्यान रहता होगा। मोमिन जब कब्र में रहता है इसे क़यामत तक रोजाना सुबह शाम जन्नत का वो मकाम जो इसके लिए मुकर्रर होता है दिखाया जाता है और बताया जाता है कि तेरा ठिकाना ये है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मोमिन कब्र में सब्ज बाग में रहता है और इसकी कब्र 70 गज चौड़ी होती है और इसमें ऐसी रोशनी होती है जैसे कि 14वीं की रात की चांदनी रात को होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवालो जवाब के बाद मोमिन मुर्दे की कब्र वसी रोशन कर दी जाती है तो इससे फरिश्ते कहते हैं कि अब दुल्हन की तरह आराम से सो जा और तुझे वही जगाए जिसे तू सबसे ज्यादा महबूब है। लिहाजा वो नहायत आराम और आसाइश से कब्र में रहता है यहाँ तक कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज उसको उसी जगह से उठाएगा। कब्र पहली मंजिल है, अगर इस मंजिल में निजात पाई तो इसके बाद की मंजिलें बहुत आसान हो जाएंगी और अगर यहाँ अजाब में मुब्तला हुआ तो आगे चलकर इससे ज्यादा सख्ती होगी। हदीस शरीफ में है कि मुर्दा कब्र में ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा और मदद के लिए फरियाद करता हो। मुर्दा हर वक्त अपने माँ बाप, बहन भाई या औलाद और दोस्तों वगैरह से दुआ खैर और फातिहा का मुंतजिर रहता है। जब इसको इसके पसमानदगान की तरफ से कोई तोहफा सवाब पहुँचता है तो इसके लिए तमाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इससे महबूब और मरगूब होता है और अल्लाह ताला इसके रिश्तेदारों की दुआ खैर के सवाब को कब्रिस्तान वालों पर पहाड़ों के बराबर दाखिल फरमाता है। मौत एक दरवाजा है जिसमें सब लोगों ने दाखिल होना है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी कब्र पर जाते तो इतना रोते कि इनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। आपसे पूछा गया आप जन्नत और जहन्नुम का तज़किरा करते हैं तो नहीं रोते मगर कब्र देखकर रोते हैं। कहने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, लिहाजा अगर मरने वाला इससे निजात पाए तो बाद की मनाजिल इसके लिए कहीं ज्यादा आसान है और अगर इसकी तकलीफ से निजात न पाए तो बाद के मराहिल इससे बहुत ज्यादा सख्त हैं। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैंने कभी कोई मंजर नहीं देखा मगर कब्र इससे ज्यादा सख्त है। हमारे लिए इन कब्रों में इबरत है
देखिए, मालदार, फकीर, ताकतवर और कमजोर दुनिया में लौटने की ख्वाहिश रखते हैं, माल जमा करने और महल बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि काश हमें एक नमाज पढ़ने की मोहलत मिल जाए, काश हमें एक दफा सुबहान अल्लाह कहने की फुर्सत दे दी जाए। लेकिन अब नामुमकिन है, अब अमाल नामे लपेट दिए गए हैं, रूह जिस्म से निकाल ली गई है, जिंदगी की मोहलत खत्म हो गई। अब हर मैयत अपने अमल की मरहूम होकर कब्र में पड़ी है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपका लाइक और शेयर करना हमारी हौसला अफजाई करता है। कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक